Hello students, welcome back to Prepon. Today I introduce a theme-based test series to you. I have devised a new concept for testing you for prelims 2021. एक बहुत innovative concept मैं लेके आया हूँ, theme-based test series in which we will be testing you on three areas: art and culture, ancient and medieval history, modern Indian history, and Indian polity. By the way, I have not taken all the subjects because I teach only art and culture, modern history and Indian polity. So I have taken these subjects only. What is the main point in this test series? Since it is theme based, the whole syllabus has been divided into various themes. Shortly I will be telling you how it is theme based. And every theme is covered comprehensively so that all the aspects of the theme is taken into consideration and questions are framed according to that. Purpose is your preparation is up to the mark and as per the trend of the examination, and you are able to do most of the questions on these topics in your exams. In total, there will be 18 tests, 6 tests in art and culture, ancient and medieval history, modern history, again 6 tests, and Indian polity 6 tests. 5 थीम बेस्ड टेस्ट होंगे. टॉपिक्स को 5 थीम बेस्ड टेस्ट में बांटा है और उसी टॉपिक पर एक फुल लेंथ टेस्ट होगा. सिमिलरली इन मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो 5 थीम बेस्ड टेस्ट आर देयर एंड 1 full length test, and similarly is in Indian polity 5 theme based and 1 full length test. Now let me elaborate on this particular point. First theme based test is for art and culture. When I say art and culture, I also include ancient and medieval history relevant aspects. So for example, the first theme is religions and philosophies of ancient and medieval India. In this test, we will be framing questions on religious aspects from Indus to Mughal period, Bhakti and Sufi movements. So all the religious aspects from beginning of ancient India to Mughal India or medieval Maratha, and all the philosophies, whether it is in the form of Buddhism, Jainism or in the form of Bhakti and Sufi, all dimensions from different philosophies, questions will be framed. We will be seeing sample questions also. Similarly, so this is the theme 1. We are testing you in religions and philosophies comprehensively. 50 questions will be there in this test, 1 hour duration. So religions philosophies के question आएंगे तो you will be able to do. And relevant sources, जितने भी important sources होते हैं NCERT and other important websites and current development, all are taken into consideration while framing these questions. I myself have framed questions for this particular test series. Similarly, modern India 1, conquest of India, right from the beginning of, you can say, advent of Europeans to 18th century, all the aspects of 18th century regarding the conquest of India and the governors general of the period. So from the decline of Mughals to the conquest of India, 1818 you can say, or rather 1856 when Awadh was finally conquered, all the important aspects will be covered in this particular theme of modern India. Similarly in polity, the first of all in polity, principles of the constitution is the theme. Constitution के principles we see from preamble to fundamental duties, or you can say DPSPs. These are the basic principles of the constitution. इसी पे dependent है पूरा constitution. So first theme is again the polity 1, basic principles of the constitution. Preamble है fundamental rights, directive principles of state policies and fundamental duties. So questions will be framed in these areas and taking into consideration all the important cases, court cases which are relevant for the exam. They are also part of these test series. We come to art and culture topic 2, in which art and architecture, somewhere 50 questions are there, somewhere 100 questions are there. Art and architecture, literature, sculpture, music, comprehensively of ancient and medieval India has been taken into consideration and 100 questions are there. जितने भी फॉर्म्स हैं राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू मेडिवल इंडिया और जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं सबके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम किए गए हैं.
So we are covering in detail to the required depth all the themes. For instance, let us see religions and philosophy पे एक क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is are associated with Jainism? एक छोटा सा क्वेश्चन है. इनमें जैनिज्म से संबंधित कौन से थीम्स हैं? स्यादवाद, सप्तवाद, अनेकांतवाद एंड थेरावाद. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? स्यादवाद, सप्तवाद, अनेकांतवाद, थेरावाद. सो यू नो, Jainism and Buddhism are very important topics for prelims exams. You know, Syadvad, Saptavad and Anekantvad are aspects of Jainism. Theory of maybe, theory of 7 dimensions of perspectives and theory of many perspectives, theory of manyness. So all these three are related to Jainism, in which it is said that in Jainism there can be relative perceptions of a particular thing, relative perspectives of a particular thing. एक चीज को कई एंगल से देखा जा सकता है. जैसे ब्लाइंड मैन एलिफेंट को देखते हैं, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा ये पिलर है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा ये रस्सी है. तो द सेम थिंग कैन बी लुक्ड इनटू फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट्स. इट्स सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डायमेंशन ऑफ लुकिंग इनटू द थिंग्स. सो ये स्यादवाद या सप्तवाद, अनेकांतवाद जैनिज्म के ही कंसेप्ट्स हैं, बट थेरावाद इज वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म का एक सेक्ट है. जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तब विचारों में मतभेद होने लगा है, संघ में ही प्रॉब्लम आने लगी है. तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, थेरा माने पाली भाषा में होता है बॉय, तो जो गौतम बुद्ध के विचारों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वो थेरावाद बन गए, और जो विचारों में जो प्रैक्टिसेस में परिवर्तन लाना चाहते हैं न्यू स्कूल, वो महासंघिक हो गए. आगे चल के हीनयान महायान हो जाएगा. सो सिमिलरली लुकिंग है सप्तवाद, अनेकांतवाद, थेरावाद. सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो दिस इज बुद्धिज्म, रेस्ट ऑफ देम आर जैनिज्म. सो दिस इज वन डायमेंशन. एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है. दिस वे वी विल बी डीलिंग, एंड द बेस्ट थिंग इज आई विल बी एक्सप्लेनिंग, गिविंग वीडियो डिस्कशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस में, क्योंकि मुझे ही करना है तो वीडियो डिस्कशन सभी क्वेश्चंस के मैं दूंगा. इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे. थेरावाद, ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स व्यू, is a sect of Buddhism. This thought came into being in the second Buddhist council. Other terms are related to Jaina philosophy of manyness of reality. एक ही चीज को देखने के कई पहलू हो सकते हैं. Is the theory of अनेकांतवाद और सप्तवाद और स्यादवाद, theory of maybe. So this is one example, one sample question. इसी के तरीके के क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज में होंगे. Now let us see another sample on Indian polity. Principles of the Constitution. Definitely you are getting 1 or 2 questions on the basic concepts and principles of Indian Constitution or Indian polity. For example, consider the following statements about rule of law. Rule of law से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए हैं. Rule of law tries to establish an accountable and responsible government. Rule of law tries to establish a responsible and accountable government. पहला स्टेटमेंट, equality before law promotes and strengthens rule of law. ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या नहीं हैं? If you know rule of law, you can very well do this question, and both the statements are correct. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, because rule of law means there should be supremacy of law. लॉ सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है. जब कानून सर्वोपरि होता है तो फिर इंडिविजुअल थॉट की वैल्यू कम हो जाती है. जो शासक होते हैं वो विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं कर सकते हैं, कानून के मुताबिक काम होगा. ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो आर्बिट्रेरीनेस इन डिसीजंस एंड एक्शंस खत्म हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी. तो ऑब्वियसली जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब लॉ ही सुप्रीम है, व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, तो ऑब्वियसली जवाबदेही बढ़ जाएगी और जो आर्बिट्रेरीनेस है वो अपने आप खत्म हो जाएगी. तो बिल्कुल सही है. एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज पर एवी डाइसी. प्रिवलेंस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ बाय इक्वल सब्जेक्शन टू लॉ, एंड ऑब्वियसली व्हेन लॉ इज सुप्रीम देन एवरीबॉडी विल बी सब्जेक्टेड इक्वली टू द लॉ. डेफिनेटली जब लॉ के अनुसार ही सबको देखना है तो फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसकी गुंजाइश भी कम हो जाती है. So both the statements are correct so far as rule of law is concerned.
Another dimension of rule of law is this, that availability of rights and freedoms to limit the unwanted actions of the government. हमारे जो अधिकार हैं, हमारी लिबर्टीज हैं, वो हमको क्यों दी जाती हैं? वो इसलिए दी जाती हैं कि जो आर्बिट्रेरीनेस है गवर्नेंस की, जो गवर्नमेंट है जो मनमानी करती है, अगर गवर्नमेंट मनमानी करेगी तो मेरी राइट्स एंड लिबर्टीज डेफिनेटली अफेक्ट होंगे. यदि ऐसा है, I will reassert my rights and liberties so that government is working as per the rule of law. So this is explanation for this particular question. This way, एक अभी तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं, मेरे एक्सप्लेनेशंस भी क्वेश्चंस के लिए आते जाएंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से. द प्रिंसिपल्स इनंशिएटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्रेमिंग. डीपीएसपी पे एक क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स इनंशिएटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्रेमिंग. जो डीपीएसपी पार्ट 4 में प्रिंसिपल्स हैं वो आधार देते हैं, किन किन पॉलिसीज को हम बनाने का आधार देते हैं. वो सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिसी फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. अब आपने डीपीएसपी पढ़ा हुआ है, डीपीएसपी आधार है पॉलिसी मेकिंग का, गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस हैं. तो डीपीएसपी से हम कौन सी पॉलिसी बनाने के डायरेक्शंस हमको मिल जाते हैं? वेरी ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस फॉर सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, foreign policy, policy for democratic decentralization. However, there is no specific mention of national security policy. National security policy का कोई component directive principles of state policy में नहीं है. So 1, 3 and 4 is the answer. C is the answer because Article 39, Article 41, 42, 43, 46 are for children, for old people, for workers, industrial, agricultural worker, for weaker sections of the society, for maternity relief, for labor reforms. all social security policy के लिए बहुत सारे हैं, education के लिए है, employment के लिए है. foreign policy article 51 simply says how government should frame its policy so that there is international peace in the world. And article 40 is the basis for panchayati raj system, policy for democratic decentralization. There is no specific mention of national security policy in directive principles of state policy. So this way, the simple things of part 4 are put in the form of dramatically in the form of a question, so that you can think over it. Such questions make you think and apply your mind to bring out an answer. So this is another instance of our test series. This I have told you. Now modern history to revolts and rebellions. Obviously जब अंग्रेजी शासन भारत में लागू हुआ तो एक अगला उसका एंगल क्या था? रिएक्शन. रिएक्शन अपने आप में क्या है? एक थीम है. रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स या सिविल रिबेलियंस या पीजेंट रिबेलियंस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी एक रिएक्शन ही है. तो पहला रिएक्शन रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस, राइट इन द फॉर्म ऑफ सिविल रिबेलियंस, पीजेंट एंड ट्राइबल रिबेलियंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अदर रिवोल्ट्स आफ्टर 1857. तो जितने भी रिवोल्ट्स और रिएक्शंस हैं उन पे एक थीम बना दिया. 50 क्वेश्चंस होंगे. तो ये, और इससे डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको हम थॉरली कवर कर लेंगे. पॉलिटी 2 में अब प्रिंसिपल्स हो गए, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज थे. अब प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उस पे क्वेश्चंस हैं. अगेन वी आर हैविंग 50 क्वेश्चन, सो दैट वी आर कवरिंग दिस एरिया होलिस्टिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. और यहाँ तक पार्लियामेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई मीन लेजिस्लेचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स of ancient and medieval history. Another very very important area is economic system, social systems, जिस पे questions frame होने लगे हैं prelims में. Aspects of the society, economy like caste system, education, land tenures, land revenue, irrigation systems, trade and commerce, coinage from Indus to Mughal age, including Deccan and South India. South India, North India, ancient, medieval सबको मिलाकर एक अच्छा सा क्वेश्चंस बनाए हैं सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स पे, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस
आ जाते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली सल्तनत या मुगल से जमींदारी पे क्वेश्चन आ गया, उससे पहले दिल्ली सल्तनत पे आ गया। तो ये एरिया ऐसा था जो बहुत एम्फेसाइज एग्जाम्स में नहीं हो रहा था, इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली ले लिया गया है टेस्ट सीरीज में, एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑल ऑथेंटिक सोर्सेज। Modern history 3, reform movements and important reformers. Definitely some questions come on personalities, socio-religious reformers, Raja Ram Mohan Roy हैं and K.C. Sen हैं and all other things. तो जितने organizations हैं और जितने reformers हैं, इनके thoughts पे, इनकी किताबों पर, इनके organizations पर different questions are framed so that this area is also covered well. Judiciary, CAGI, AGI, Election Commission, Finance Commissions, other important institutions of, you can say, the political system are covered in the form of another test. Similarly, art and culture, significant contributions and important events related to kings and emperors from both ancient and medieval periods including Deccan and South India. एक आध दो क्वेश्चंस हमको एम्परर्स से भी मिल जाते हैं, राजा या उनसे संबंधित कल्चरल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज पे मिल जाते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे तो नहीं मिलते। राइट फ्रॉम अशोक टू शिवाजी एंड साउथ इंडिया, चोलास हैं, विजयनगर वगैरह हैं, इनके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जितनी कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट्स हैं थिंग्स की, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह से, वो सब हम ले लेंगे इसमें, इस टेस्ट में, सो दैट दिस इज ऑल्सो कवर्ड वेल। नाउ पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन देखते हैं लेजिस्लेचर का। Consider the following statements. The chairman and members of Rajya Sabha, the chairman and members of Rajya Sabha have to fulfill same qualifications to become members of the House. The chairman and members of Rajya Sabha have to fulfill the similar qualifications to become member of the House. Second statement says the speaker and members of the Lok Sabha have to fulfill same qualifications to become member of the House. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एंड एवरीबडी ऑफ यू डेफिनेटली कैन फाइंड आउट, यस, चेयरमैन इज नेवर मेंबर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन इज हेड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा के कभी मेंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात, चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एट द सेम टाइम चेयरमैन इज नेवर मेंबर ऑफ द हाउस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, बट हाँ, लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा के स्पीकर बनने के लिए पहले लोकसभा का एमपी बनना पड़ता है, और जब वो एमपी बन जाते हैं तभी एलिजिबिलिटी बनती है कि वो लोकसभा के स्पीकर चुने जा सके, बन पाएँ। इसीलिए जब प्रोटेम स्पीकर होता है, पहले सारे एमपीज को वो शपथ दिलाता है ताकि सभी लोग एलिजिबल हो जाएं उनमें से, क्योंकि एक को चुनना है तो लोकसभा का स्पीकर। तो ऑब्वियसली ये सही है कि स्पीकर और मेंबर्स ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन मेंबर बनने के लिए एक सी होती है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। नाउ मॉडर्न 4, इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी 4, सेंटर स्टेट रिलेशंस, अदर बॉडीज लाइक नेशनल कमीशंस, वीमेन कमीशन है, SC/ST कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, वेरियस ट्रिब्यूनल्स, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने आप में एक छोटा सा थीम बना दिया है, वेरियस क्वेश्चंस आर देयर। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर 5, कंटेम्प्रेरी आर्ट, डांस फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर है, मार्शियल आर्ट्स हैं, मेटल आर्ट है, फेस्टिवल्स हैं, थिएटर्स है, पपेट्री है, करंट डेवलपमेंट्स हैं, इन सबको कंटेम्प्रेरी आर्ट को एक अलग थीम पे ले लिया है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के लिए, इसमें 100 क्वेश्चंस लिए हैं। तो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जितना भी इंपॉर्टेंट बॉडीज वगैरह हैं इसको हम कवर कर लेंगे, राइट फ्रॉम द होल ऑल द टॉपिक्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। See one example of contemporary art. Which of the following paintings are used as background to the idol of Lord Krishna in the नाथद्वारा टेम्पल नियर उदयपुर? उदयपुर के पास एक नाथद्वारा टेम्पल है लॉर्ड कृष्ण का। अब उसमें जो पीछे पेंटिंग्स लगी हैं वो कौन सी पेंटिंग्स हैं? क्या वो फड़ पेंटिंग्स हैं या पिछवई पेंटिंग्स हैं या पटचित्र हैं या कालीघाट पेंटिंग्स हैं? तो कालीघाट पेंटिंग्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इट इज पिछवई पेंटिंग।
नाथद्वारा टेम्पल में क्लॉथ पेंटिंग होती है, लॉर्ड कृष्णा को डिपिक्ट किया गया है, तो दीज आर कॉल्ड पिछवाई पेंटिंग्स। तो हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम सभी पेंटिंग्स के बारे में इसे जान लेंगे। पिछवाईज आर क्लॉथ पेंटिंग्स दैट अनफोल्ड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड आर यूज्ड एज बैकग्राउंड of his idol at Nathdwara temple near Udaipur, Rajasthan. The paintings have deep religious roots and are devotionally rendered by the painters. तो हम जब एक्सप्लेनेशन के तौर पे इनको देख लेंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द ब्रिटिश। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, नियरली हाफ ऑफ द जमींदारी लैंड्स पर पुट ऑन सेल। कॉर्नवालिस का जो सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था और परमानेंट सेटलमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ ही समय बाद आधी जमींदारी बिक चुकी थी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, दिस सेल ऑफ लैंड रिजल्टेड फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू अर्बन एरियाज ड्यू टू पीजेंट रिवोल्ट्स। क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, इसलिए जमींदार छोड़ के जा रहे थे और अपनी जमींदारी को बेचते जा रहे थे। ये शायद वजह होगी उनके जाने की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है कि आधी जमींदारियां बिकने लगी थी क्योंकि लैंड रेवेन्यू का रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन बिकने की वजह ये नहीं थी कि रिवोल्ट्स और रिबेलियंस हो रही हैं। रिवोल्ट्स रिबेलियंस होने तो लगी थी, बट उनके जाने की वजह ये थी कि उतना हाई रेट का रेवेन्यू वो दे नहीं पा रहे थे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो सनसेट लॉ के तहत उनकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी, उनके जमींदारी राइट्स किसी और को दे दी जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि दिस सेल ऑफ लैंड रिजल्टेड फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू द अर्बन एरियाज ड्यू टू पीजेंट्स रिवोल्ट्स। माइग्रेशन नहीं था, वो अर्बन सेंटर्स में रहने तो लगे थे, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी कि रिवोल्ट्स वगैरह हो रहे हैं इसलिए अर्बन सेंटर्स में रहने लगे हैं। वो बेसिकली अपने अधिकारों को और छोटे छोटे लोगों को सब इन्फ्यूडेट कर देते हैं ताकि वो अर्बन लाइफ वहाँ बिता सकें। और चूंकि जब ज़्यादा दावेदार कलेक्शन एजेंसीज बनती चली जाएंगी तो जो पीजेंट्स वगैरह थे वो उसमें दबने लगे थे। तो लेकिन उनके जाने की वजह रिवोल्ट्स वगैरह नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जमींदार वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू रेट बीइंग वेरी हाई, हेंस डिफॉल्ट जमींदारी राइट्स डिसॉल्व्ड एंड लैंड्स वर रिसोल्ड। पॉलिटी 5 मिसलेनियस पंचायती राज है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्स एंड करंट डेवलपमेंट्स आर टेकन into consideration in this particular test. Now we have completed these tests. 5 थीम है। Now full length, art and culture full length, full syllabus, 100 questions. Modern India full syllabus, 100 questions. Polity full syllabus, 100 questions. This way we are going to test you around in 1200 questions theme based test. Last test will be held on 16th June 2021. So in the month of June, which will be very crucial month for you, 27 जून को आपका पेपर है, तो उससे कुछ ही पहले आपके 3 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज 2 जून, 9 जून और 16 जून को हम आपके फुल लेंथ टेस्ट करा देंगे ताकि आप वेल वर्स्ड हो जाएं इन 3 एरियाज में। तो इन 3 एरियाज को मिला दें तो करीब आपके 40 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं एग्जाम में, एंड दी 40 क्वेश्चंस विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in your prelims exam. So this test series will be started shortly on 17th February 2021. आने वाली 17 तारीख को ये शुरू होने जा रहा है। 2000 रुपीज़ की फी है इंक्लूडिंग GST। GST इंक्लूड करके इसकी फी 2000 रुपीज़ है। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड शेड्यूल यू कैन गो फॉर prepon.in वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स मिल जाएंगे। और ऑनलाइन मोड में ये चलेगी एवरी वेंसडे, 17 से शुरू करते हैं। एवरी वेंसडे शाम के 6 बजे तक टेस्ट पेपर लोड हो जाया करेगा एंड यू कैन सॉल्व द टेस्ट पेपर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर के तौर पे उसमें अटैच हो जाया करेगा सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेस्ट सीरीज। सो इट इज थीम बेस्ड टेस्ट सीरीज एंड होप you have understood my point and will definitely join this test series. A different type of test series is being brought to you. So that's all for today. Thanks a lot for watching this video. Thank you.